The youth of today are the leaders of tomorrow. A quote perfectly said by our one of our respected eminent person, Nelson Mandela. With this quote, I would like to start today's event. A very pleasant and warm evening to everyone assembled here. I, Sakshi, with my co-host Ankita, welcome you all to this magnificent evening. It's an honor in itself to honor this beautiful audience gathered here. We acknowledge the presence of some of our eminent guests, esteemed Principal Professor P.C. Agarwal sir, Overall Program Coordinator Dr. Lakshmidhar Behra sir, Program Coordinator Dr. Kalinga Ketaki sir, and Dr. Ambesh Kumar Pandey sir, and all esteemed professor and my dear audience. And also Dean of Instructions, Manasi Goswami ma'am. Sorry, Sarita ma'am. Thank you, Sakshi. So I once again welcome everyone to this gracious event. Now, I would like to request our program coordinator, Dr. Kalinga Ketaki sir, head of DESSH, to enrich this event with his gracious presence. Please, sir, come upon the dais. Thank you. Very good afternoon to all of you. Honorable Principal of this prestigious institute, Professor P.C. Agarwal sir, esteemed Dean of Instruction, Madam Professor Ritanjali Das ma'am, overall coordinator of this program, Professor L.D. Behra sir, and one of the program coordinators of today's event, Dr. Ambesh Kumar Pandey ji, and all my dear colleagues and my student friends. So today, we are going to have this youth parliament, and our Honorable Principal sir will throw light on it. The theme, you know, it is a very marvelous, unique experience. We are going to have it today only, and that is with the kind mercy of our Honorable Principal, Professor P.C. Agarwal sir. I am very much happy that we are having this kind of program in our institute, and we also expect this kind of program more in near future. In this connection, to go further, I'd like to invite our Honorable Principal sir, Professor P.C. Agarwal sir, to come on the stage for lighting the auspicious lamp, along with respected Dean of Instruction, Madam Professor Ritanjali Das, and overall coordinator, Professor L.D. Behra sir, and one of the coordinators, Ambesh Pandey ji. Please come on the stage. Sir, madam. हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे जग सिर मोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे हे हंसवाहिनी
ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। सीता सावित्री दुर्गा माँ, फिर घर घर भर दे। सीता सावित्री दुर्गा माँ, फिर घर घर भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब विमलमति दे। अम्ब विमलमति दे। अम्ब विमलमति दे। थैंक यू वेरी मच। अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारा संस्थान के परम आदरणीय परम सम्मानीय प्राचार्य महोदय प्रोफेसर प्रकाश चंद्र अग्रवाल सर को विनम्र अनुरोध करता हूं कि वो आए और आपका अभिभाषण यहाँ पे रखें सर। Good afternoon. Esteemed Dean of Instruction, Professor Itnali Das Madam, Head Department of Education and overall coordinator of this Swachhata Pakhwada, which began from September 1st and will go on till tomorrow or day after tomorrow. Dr. Kalinga Ketki ji, coordinator of this program, and co-coordinator Dr. Ambesh Pandey ji, my learned colleagues and dear students. This activity is actually under this Swachhata Pakhwada, but I think this is much more relevant with our educational institution, because now what we should learn, this even NEP and NCF they are defining, and that is not only limited to knowledge. Along with knowledge, we should have capacities, dispositions, and values. In capacities means innate abilities and skills. And dispositions means formation of perception and attitude. And values means after learning, a learner should be able to determine what is wrong and what is right. And in values, there are many values, ethical, moral, epistemical, but one of the most important values is democracy, democratic value. And youth parliament, I was observing here that here there is a ruling party, there is an opposition party, speaker, secretariat is also there. But I was just observing that number of members of opposition party are equal or nearly equal to the number of members of ruling party. I have got chance even to visit parliament because I have little bit familiarity with the current speaker, Lok Sabha speaker, Mr. Om Birla, who is from Kota. He is MP from Kota constituency of Rajasthan. But that was this parliament where I visited. But now the parliament is in Central Vista. New building, I think you all know. So why this democratic value is important for us? Because we are living in the largest democratic country, largest democracy. I think you will be aware of the recent debates, news, how Kamala Harris and Trump they are debating, and who is pulling down whom. Every day I think you will be at least 1 hour I see all these things. Right? So at 5 fronts how Kamala Harris is coming over Trump and how Trump is pulling down Kamala Harris, that is happening. Biden is out of race now because that's why Kamala Harris came. So we say that US is democracy. That is old democracy we can say because USA became independent in around 1776. India became independent in 1947. But India is the largest democracy.
And democratic value means we should respect everyone, but that respect is also governed, that, what we can say, liberty is also governed by certain norms. If we have liberty of speech, it doesn't mean that we can abuse anyone, right? So democratic value mean that we have to respect others, right? And in democratic value, even we say that our education should make everyone equitable. Equitable, even SDG 4.0, that's why highlights that we want education which makes quality, inclusive, equitable education and lifelong learning. So which gives equitable opportunity to everyone, equal opportunity to everyone, which makes everyone equal, right? Irrespective of caste, creed, sex, religion, etc., etc., etc. Right? And experiencing this in our institute, definitely the role models, the ambassadors, representatives from different states will carry forward this experience, that what is the role of democratic value in our country, and being teacher, how it is important for us, because in coming days you will be preacher, teacher, right? So we should know that what we mean by democratic value. Definitely this activity is going to give an insight. I was just asking Ketki Saab that what I have to speak. But actually, since we are realizing we are living in democratic country, we know that what is our right. And within limits, how can we question even? How people are questioning, you are observing how Mamata Banerjee is being nowadays targeted because of that Kar hospitals incidents, right? So, but even then, how she will save herself, how people will attack, what will happen, where the situation will go, that everything teach us that how we can survive, can move, can prosper in democracy. So India is really exercising democracy. You can see other countries nearby India also. You can see the Bangladesh situation, recent situation, when the president had to run away. She is now in shelter of India, you can say. Other countries, if you know about Sri Lanka, few years back, how the president house was captured, right? If you see Pakistan, even Afghanistan, Burma, Nepal even, in one incident in Nepal, 11 family members of the royal family, ruling family were murdered. I think you know all these things. So what is happening even nearby India, and how India is different from other countries, right? And here we have Prime Minister. In America, there is President, who is important. So how election takes place, we know that our parliament has two houses, upper house and lower house. Why we say upper house? That while the people, they don't come by direct election, but even then we say it upper house, right? So these things we can also understand. The time period for one member MP in Rajya Sabha is 6 years, while in Lok Sabha maximum is 5 years. Right? So, and when anti-defection bill, many things are there, right? I think you know anti-defection bill also. You also know that, but I don't want to go because that can become political issue, that how Rahul Gandhi took away an ordinance. And so what happens in our parliament, what happens in democracy, that we should learn, we should make others learn, because we want that our democracy should sustain. And in democracy, everyone has right. Right? If opposition should be in a role model to actually have a governor on the ruling party. Ruling party should not feel that they can do whatever they like. Right? The opposition party has to check it. Right? In India, everyone is checked by every other. Means no one is free. Even president cannot take decisions at her own. Prime Minister cannot take. Even parliament cannot take. Even in parliament, sometimes we need simple majority, sometimes we need 2/3 majority, sometimes we need something else. So there are provisions. We have a long elaborated constitution where characteristics are taken from different countries' constitutions or different countries. So we are living
with all these values. Right? I think here these groups will play that how a parliament can be run, should be run, can debate, can come forward with the energy of youths. This is youth parliament, but actually in parliament we have parliamentarians even before age 75, 80. But here we are having youth. So youth are energetic. I think you know about Chandrasekhar. चंद्रशेखर को क्या बोलते थे पता है आपको शायद, जो हमारे पीएम बने, बिहार से थे वो, युवा तुर्क, पता होगा शायद नहीं, क्योंकि वो किसी को बख्शते नहीं थे, जब कुछ उनको खराब लगता था वो तिल मिला जाते थे. यू कैन सी, कैन एक्सप्लोर. तो जब मैं किसी कॉलेज में सर्विस करता था, वो पीएम थे, वो आए थे वहाँ, राइट. सो युवा तुर्क, चंद्रशेखर. You can know about Indra Kumar Gujral, you can know about Dev Gowda, means what were our prime ministers, because I will not talk about presidents, because our democracy is mainly dependent on prime minister. President is though the, you can say, the authority even of both the houses, but still powers are with prime minister. Even president can take any decision only on the recommendation of the prime minister or parliament. So we have a balanced system. Hopefully here they will argue, they will debate in such a way that you will learn that how parliamentarians should work, right? And how parliament is important and how parliament should discuss the issues which are concerned with everyone, with common people, right? You can see different movies are also there. How 370 was removed, how the background was prepared. I think you know that there was some clause. That clause was removed from Constitution, but that clause could be traced only in a library document of Legislative Assembly of Kashmir. From there, that peace was brought, and then this amendment could take place, where 370 has been removed now. And now state government means people who are fighting there or who will be contesting election there, whether Mufti, Mehbooba, her daughter, even Umar Abdullah, his father, they are just speaking that we will remove 370. But if you know the parliamentary proceedings and rules, then only parliament can take any decision, they cannot. So if they are speaking, it means they are befooling people. People should know that they are befooling us. They can't do anything. Right? So that is the awareness, and that awareness actually our democracy should be able to promote. Hopefully, I'll not take much time because already it is delayed. Hopefully, from here, we all will learn many things, because they have prepared, some of them, they have attires also of leaders like. So they have prepared very well. They have worked on this, and definitely their debate is going to add value in our understanding. I am thankful to the coordinators as well as all the participants, and how speakers, secretariat works, right? That is also important. So secretariat is there, and how speakers, chair is there. Even Prime Minister has to take permission from chair, who is leader of parliament. Prime Minister is leader of parliament, but still he has to take permission from chair. Chair is chair, right? So how secretariat works, how speaker takes decision, how proceedings are there, how question hour is taken, how zero hour is taken. I don't know how much they will do, but how things are taken and how answers and responses are given, I think we will be able to learn from these young youth people, youth of our institute. They would have worked hard for it, and definitely this activity is going to interest all of us, make us happy. Thank you. So thanks a lot for your comprehensive analysis, crystal clear analysis about some glimpses of political functions, of political structures, not only our country, but also the reflections in the biggest, the qualitative democracy which is there in USA.
Sir talked about the largest democracy and up to the qualitative democracy. Parliamentary form of government, presidential form of government, and how the law is being formulated, why the parliament is otherwise known as the highest law-making body of the country. Sir, you have highlighted many things, and I think it seems like a political science class, not less than. You highlighted many things from American independence to Indian independence, and being that 1776 and 1947, such a huge gap, but still India acquired the status of largest democratic country with longest serving written constitution with us. Thank you, sir. Thanks a lot for your valuable and informative speech, which is very, very essential, not only for the students, but also for all of us. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you so much, Ketki sir. Thank you so much, Principal sir, for bestowing upon us your words of wisdom. Thank you so much again. So now I would like to give an introduction to what exactly is going to happen in this event. So Youth Parliament is a platform offered to the youngsters where they are given a mock parliament setup and exposure to the parliament type debate. It brings like-minded youngsters on same platform and offers a chance for creation of a community to discuss various issues and come up with the possible solutions. That is, in order to create a set of youngsters with an idea of parliament, the best way is to make them sit in that type of environment, right? So with an quotation of Sir John Diefenbaker, that parliament is more than a procedure, it is the custodian of a nation's freedom. So with this, I would like to request my co-host to continue this. Thank you so much, Ankita. Now we'd like to start the session of Parliament. Thank you. माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष महोदया पधार रही हैं। A very good morning to all of you. I welcome you all to today's Parliament session and I hope it will be fruitful. We begin today's session with oath or affirmation of our newly elected members. Secretary General, please. Srimati Anuradha Kumari, who stands elected from Shivgarh constituency of Bihar, will now take the oath or affirmation. Srimati Anuradha Kumari, would you like to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath in? In Hindi, please. मैं अनुराधा कुमारी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने जा रही हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद। Sri Vivek Tamang, who stands elected from Darjeeling constituency of West Bengal, will now take the oath or affirmation. Sri Vivek Tamang, would you like to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath in? In Nepali, please. म विवेक तामाङ लोकसभाको एकजना सदस्यको रूपमा निर्वाचित भएको हुनाले प्रतिज्ञा गर्छु कि विधिद्वारा स्थापित भारतको संविधानप्रति निष्ठापूर्वक दृढ विश्वास गर्नेछु अनि भारतको प्रभुसत्ता अनि अखण्डताको रक्षा गर्नेछु तथा जुन पदमा म प्रवेश गर्दैछु त्यसको कर्तव्यको म विश्वासपूर्वक पालन गर्नेछु। जय हिन्द, जय गोर्खा।
Honorable members, as we meet today, it is my sad duty to inform the House of the demise of our former colleague, Shri Brahmanand Mandal. Shri Brahmanand Mandal was an Indian politician who served as a member of the Lok Sabha from Munger constituency for 3 terms under 3 different political parties. In 1991, as a member of the Communist Party of India, in 1996 under the Samta Party, and re-elected as a member of Janata Dal. He passed away on January 30th, 2024 at the age of 77. I request the Honorable Prime Minister to share a few words, please. धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। श्री ब्रह्मानंद मंडल जी का निधन हम सबके लिए अपूर्ण क्षति है। उन्होंने ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ इस सदन, देश और समाज की सेवा की है। मैं सदन की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने जो राजनीतिक जीवन में जिन आदर्शों को स्थापित किया है वे हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। हमारी सहानुभूति उनके परिवार के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Leader of Opposition, Shri Archit Suman, please. Honorable Madam Speaker, मैं अपने और सभी सदस्यों की ओर से श्री ब्रह्मानंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह मेरा सौभाग्य था कि मुझे उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला था। वह बहुत ही कर्मठ तथा बहुत खुशमिजाजी आदमी थे। हर परिस्थिति में मुस्कुराने वाले तथा खुले विचारों वाले व्यक्ति थे। हमने उनके रूप में एक समाज सेवक, एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता और एक जन नेता को खो दिया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस दुख के घड़ी को झेलने की शक्ति दे। धन्यवाद। धन्यवाद। The House may stand in silence for a while to express our deep sorrow. Secretary General may convey the message of condolences to the bereaved family. Now I request the Honorable Prime Minister to introduce the new ministers, please. धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। बड़े हर्ष के साथ मैं अपने कैबिनेट के नए 2 साथियों का परिचय सदन से कराना चाहता हूं। हमारे कैबिनेट के जो पहले साथी हैं उनका नाम है श्री संजय कुमार जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन का जिम्मा संभालेंगे। वह हमारे दूसरे साथी हैं श्री ठाकुर गणेश मोहंता जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सप्लाई का जिम्मा संभालेंगे। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि इनके राजनीतिक अनुभव और कौशल का लाभ हमारी सरकार, सदन और राष्ट्र को जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Now let us start with the question hour. पहले मैं अनुरोध करूंगी श्री अर्चित सुमन जी से कि वे अपना प्रश्न पूछें। ऑनरेबल मैडम स्पीकर, हमारा देश हमेशा से ही अहिंसा का पक्षधर रहा है। हमारे देश किसी भी युद्ध में शांति का पक्ष चुनता आया है, चाहे वह गांधी जी द्वारा अंग्रेजों को भगाने के लिए सत्याग्रह हो या भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के इस देश में कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया गया है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में भारत का पक्ष क्या है? दूसरा, भारत इजराइल को हथियार सप्लाई क्यों कर रहा है, जबकि पूरी दुनिया देख रही है इजराइल मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है? क्या अब भारत के प्रधानमंत्री मानवता से ऊपर अपने दोस्ती को रखते हैं? क्या भारत के प्रधानमंत्री हिंसा से शांति बहाल करना चाहते हैं? ऑनरेबल मैडम स्पीकर,
हम सब जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी भारत में 60 से 70% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। किसान के मेहनत पे पूरे देश को तनिक भी संदेह नहीं है। जय जय जवान जय किसान के इस देश में आज किसान को ही खालिस्तानी और टुकड़े टुकड़े गेंद से जोड़ा जा रहा है। मैं लीडर ऑफ द हाउस से पूछना चाहता हूं कि जिस 3 काले कानून को किसान चाहते भी नहीं थे उसे आप संसद तक ले आए। जरा आप यह भी बता दीजिए कि एमएसपी की लीगल गारंटी आप किसान को कब दे रहे हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ओलंपिक विजेताओं से मिलने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वर्ल्ड कप जीतने वाले प्लेयर से मिलने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। प्रधानमंत्री जी कृपया यह भी बता दीजिए कि 2 साल से टिकरू और सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए हमारे किसान भाइयों से मिलने के लिए कब जा रहे हैं। धन्यवाद। Honorable Prime Minister is requested to reply. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को जवाब देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है। भारत ने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का विचार दिया है। भारत तटस्थ नहीं है बल्कि शांति पक्ष के साथ खड़ा है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने इजराइल के विरोध में जाते हुए शांति के पक्ष में वोट किया है। मैं बताना चाहता हूं कि भारत का फलस्तीन के जो रिफ्यूजी हैं उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। साथ ही हमने जो इजराइल में आतंकी हमले हुए उनकी भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी शब्दों में निंदा की है। विपक्ष के साथ ही जिस संदर्भ की बात कर रहे हैं मैं थोड़ा उस पर चर्चा करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि स्पेन के मीडिया का यह दावा है कि भारत से एक जहाज इजराइल को जा रहा था, वह स्पेन में फ्यूलिंग के लिए रुका था। स्पेनी मीडिया का यह दावा है कि उस जहाज के जरिए भारत इजराइल को गोले, बारूद और हथियार भेज रहा था। इसी का हवाला देकर के पाकिस्तानी मीडिया ने यह दावा किया कि गाजा में दागे गए मिसाइल भारत के द्वारा दिए गए थे। भारत के विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह केवल विदेशी मीडिया का द्वारा फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा है। विपक्ष के साथियों को मैं यही कहना चाहूंगा कि उसकी याद आई तो जख्म पुराने निकले, कि उसकी याद आई तो जख्म पुराने निकले, कि दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले, कि शहर में जो करता था सांपों के कांटे का इलाज, कि शहर में जो करता था सांपों के कांटे का इलाज, उसके तहखाने से सांपों के खजाने निकले। मानवता को भुलाकर इजराइल से दोस्ती करने निकले। पहले आप ये बताइए कि आप भारत के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? भारत के साथ ही खड़े हैं, शायद आप इजराइल के साथ खड़े हैं। मैंने पहले ही अपने पक्ष को रख चुका हूं। अब मैं थोड़ा सा किसानों की चर्चा करता हूं। जहां तक किसान की बात है, हमारे लिए कृषि भारत की रीढ़ है, किसान उसकी आत्मा है। विपक्ष बहुत जल्दी भूल जाता है। ये लो आंकड़े मत मांगना। विपक्ष भूलने की नाटक करता है या भूल जाता है, ये तो यही जानते होंगे। लेकिन मैं इनसे यही कहूंगा कि गालिब ताउम्र ये भूल करता रहा कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा, आईना साफ करता रहा। मैं कहना चाहूंगा कि जब आपकी सरकार थी तब स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि किसानों की जो उत्पादन का लागत है उस पर 50% मुनाफा जोड़ करके एमएसपी दिया जाना चाहिए। लेकिन वो आपकी सरकार ने नहीं किया, वो हमने करने का काम किया है। हमारी सरकार ने किसानों के लिए प्रतिवर्ष 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के तहत देने का काम किया है। हमारी सरकार ने बाजरे पे जो एमएसपी था 2250 से बढ़ाकर उसको 2625 करने का काम किया है। हमारी सरकार ने मक्के पे एमएसपी जो 1310 था उसको बढ़ाकर 2225 करने का काम किया है। हमारी सरकार ने गेहूं पे
एमएसपी जो 1400 रुपये था उसको बढ़ाकर 2275 करने का काम किया है। मैं खाद और बीज पे जो जीएसटी लगाए हैं उस पे भी बात कर लीजिए। बोलने दीजिए मैं उनको पहले। विपक्ष के सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने लीगल गारंटी के संबंध में एक समिति का गठन किया है। अगर समिति लीगल एमएसपी को लेकर के कुछ सुझाव देती है तो सरकार इस पर जरूर विचार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Now I request श्रीमती हेरा बरलास्कर to ask her query please. मणिपुर में बढ़ रहा है रोष, तानाशाह फिर भी है खामोश। मणिपुर जल रहा था, वो फोटो खिंचवा रहा था। हिंसा को मिटाइए, देश को बचाइए। हिंसा को मिटाइए, देश को बचाइए। मणिपुर में 3 मई 2023 को कुकी एवं मैतेई समुदाय के बीच हो रहे जाति हिंसा को 16 महीने हो चुके हैं। जी हाँ मंत्री जी, 16 महीने हो चुके हैं। शर्म करो, शर्म करो। Please maintain the decorum of the house. जहां भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा जल रहा था, वहीं दूसरी ओर हमारे मंत्रीगण घोर निंद्रा में दिख रहे थे, घोर निंद्रा में। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगी कि क्या वो मणिपुर को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं? तो इस परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए मैं गृह मंत्री जी से 2 सवाल पूछना चाहूंगी। मेरा पहला सवाल, इस अवधि के दौरान शांति एवं सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए गृह मंत्रालय ने कौन-कौन से ठोस कदम उठाए हैं? मेरा दूसरा सवाल, इतने लंबे समय के हिंसा के बाद भी सरकार क्यों असफल रही है इस जातीय हिंसा को रोकने में? धन्यवाद। धन्यवाद। Honorable Home Minister is requested to reply. सदन में उपस्थित सभी सभापति और सांसदगण को मेरा नमन। अरे खामोशी रखने वाले तो हार गए और वहां बैठे हैं। हम तो बोलने वाले हैं, जवाब देने वाले हैं। हम खामोश नहीं रहते। मेरा कर्तव्य है, देश के प्रति मैं जवाबदेह हूं, संसद के प्रति जवाबदेह हूं और साथ ही विपक्ष के प्रति भी मैं जवाबदेह हूं। मैं विपक्ष की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि मणिपुर में हिंसा का तांडव हुआ है। मानवीय स्तर पर यह बहुत ही निंदनीय है, पर सम्मानीय सदस्य, इस चीज पर राजनीति करना उससे भी अधिक निंदनीय है। महोदया, मैं आज भरे सदन के अंदर आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि जब सदन आहूत भी नहीं हुआ था तब मैंने पत्र लिखकर अध्यक्षा जी से मांग की थी कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, इसके लिए समय की गरिमा ना करे। और आप कह रहे हैं मैं घोर निंद्रा में था। महोदया, जब विपक्ष को आंकड़े चाहिए तो मैं आंकड़े देता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। 3 मई से 3 दिन लगातार इस मुद्दे पर काम किया गया। 16 वीडियो कॉन्फ्रेंसेज की गई। सीआरपीएफ के सिक्योरिटी जवान वहां पहुंचाए गए। वायुसेना की मदद ली गई। चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, डीजीपी बदल दिया गया, सूरत से एडवाइजर लाया गया, भारत सरकार से एडवाइजर भेजा गया। ये सब चीज महोदया 4 तारीख की शाम को हो चुका था। हिंसा के बावजूद हमने 28 दिनों के अंदर मणिपुर में रेल सेवाएं पहुंचाई ताकि वहां आवश्यक सामग्रियां पहुंचाई जा सके। साथ ही 8 मेडिकल कैंप्स लगाएं तथा 4 डिस्ट्रिक्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से न्याय के जरिए उन्हें न्याय दिलवाया ताकि उन्हें हाई कोर्ट तक ना पहुंचना पड़े। और आप अभी स्कूली शिक्षा की बात उठाएंगे, मुझे पता है आप स्कूली शिक्षा की बात उठाएंगे, तो मैं उसके लिए भी आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि वहां अभी 98% स्कूल खोले जा चुके हैं। मैं खुद वहां की स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए वहां 3 दिन तक गया और वहां एमओएस जी से मांगकर उन्हें 23 दिन के लिए वहां रहने के लिए राजी किया। हमारी सरकार ने दोनों गुटों में शांति स्थापित करने के लिए एक समिति का भी गठन किया जो वहां तत्परता से काम कर रही है। हम निरंतर शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए एक एक जान महत्वपूर्ण है। अरे हम जान दे देंगे,
आप क्या बात करते हैं? मणिपुर भारत का एक अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। जय हिंद। धन्यवाद। अगर आप मणिपुर के लिए इतने ठोस कदम उठा रहे तो अभी भी 5 दिनों से ड्रोन बॉम्बिंग क्यों चल रहा है? सरकार उस पे भी काम कर रही है, आप देखते रहिए। Thank you. I request Srimati Chinmay Kishan to ask her question, please. Honorable Speaker, Madam, today we are witnessing troubling action by China, which is renaming places within the Indian territory, specifically in the Arunachal Pradesh region. This deliberate attempt to alter historical facts and assert dominance over sovereign land of India is not only a violation of international guidelines, but a direct challenge to a sovereign India. Therefore, I would direct my question to the Ministry of Defense. My first question will be, how does the ministry explain its failure to respond to China's renaming of places in the Indian territory, effectively giving China a free pass to trample India's sovereignty? I quote, "You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time." By Abraham Lincoln. Second question. How does ministry justify their blatant ignorance on this Indo-Chinese border issue? Is this ministry so ineffective that it cannot deal with China's constant aggression? Third question. Where are the proactive strategies and when the ministry will take action to stop such clear acts of malice expansion? मिनिस्टर साहब, सरहद पर संकट बढ़ गया, सरकार क्यों खामोश है? सरहद पर संकट बढ़ गया, सरकार क्यों खामोश है? क्या सुरक्षा की चिंता बस झूठे वादों तक सीमित है? धन्यवाद। Please maintain the decorum of the House. Opposition party, please. Honorable Minister of Defense, please answer the question. Thank you very much, Madam Speaker. I genuinely appreciate the concern of my friend in the opposition. However, at the same time, I let all the members know that while we talk about the issue right here, the brave sons of the motherland are fighting at the border, ensuring that all of us are safe. To anyone who doubts the strength of India, I assure you, Madam Speaker, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत अच्छी तरह से आता है. In April 2023, China released a list of standardized names of 11 places in Arunachal Pradesh. And now they have released the 4th list where they claim Arunachal Pradesh as Jiangnan to be a part of South Tibet. Madam Speaker, उनके कहने से कुछ नहीं बदल जाता. The shared border of 3,400 kilometers, and I assure you, हम एक भी इंच पीछे नहीं हटेंगे. विपक्ष जरूर भूल सकती है 2017 की डोकलाम गंडगोल, 2020 की गालवान वैली और 2020 की तावांग. हम चुप नहीं हैं. We are giving the perfect answer at the perfect moments. Answering your question about proactive strategies, India is strengthening global strategic alliances as a response to China's aggressive measures. Quad with Australia, Japan and USA. I2U2 with Israel, USA and UAE, and our ties with Middle East and Israel are strengthening with each passing day. Now will the opposition say that we are ignorant? आप सुनिए, अगर चाइना के पास स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है ना, तो हमारे पास भी नेकलेस ऑफ डायमंड्स है. The opposition also question about the proactive steps and measures. We have actively working and enhancing our border infrastructure to strengthening our position along the border. About 90 infrastructure has been created worth rupees 2,941 crore. Furthermore, India has already strengthened ties with Nepal when our respected external affairs minister visited there. अंत में बस यह कहना चाहेंगे, हम भारतीय अपने चाय में चीनी जरूर डाल सकते हैं, पर चीनी उनकी चाय में भारतीय नहीं डाल सकते. Assigning invented names does not alter the reality that Arunachal Pradesh was, is and always will be a part of integral India. धन्यवाद. Thank you. I request Shri Supratik Chakraborty to ask his question, please. कर्ज के बोझ से आम आदमी तरबतर हो गया. कर्ज के बोझ से आम आदमी तरबतर हो गया. महंगा हो गया खाना पीना, महंगा घर हो गया. मंत्री जी के बजट की खामी, मंत्री जी के बजट की खामी, चलिए हम बतलाते हैं. सर से करके शुरू पैर तक ले जाते हैं. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से
माननीय मंत्री को ये पूछना चाहूंगा, ये बजट तो आ गया, लेकिन आम आदमी को क्या मिला? और सुनिए, गांव गलियों में शोर होवत है, ये बजट वामे का झोल होवत रे। गांव गलियों में शोर होवत है, इस बजट वामे का झोल होवत रे। क्या इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बारे में कुछ था? क्या ये बजट आम आदमी, अन्नदाता किसान और गरीबों के लिए कुछ करेगा? क्या ये बजट में मध्यम वर्ग और स्थानीय समुदायों के लिए कुछ सोचा है? चुप्पी तोड़िए मैडम, थोड़ा बोल भी दीजिए। चुप्पी तोड़िए मैडम, थोड़ा बोल भी Opposition, दीजिए। please maintain बजट the के इस decorum. पोल को जरा खोल भी दीजिए। धन्यवाद। Honorable Minister of Finance is requested to reply, please. Speaker Madam, I appreciate the members' concern regarding the utilization of funds in the budget of the infrastructure development. अब बात हमारे बजट की हो ही रही है तो बता दे, यह महत्वपूर्ण कड़ी है जिसके वजह से सिर्फ एक आम आदमी ही नहीं, पूरा का पूरा मंत्रालय निर्भर है। एक सत्ता या सरकार नहीं, पूरा का पूरा देश निर्भर है। The government has taken several measures for ensure the effective and the utilization of the resource, which includes regular monitoring and the partnership and evolution where the robust system is established the resource allocation, public-private partnership where the government is actively promoting public-private partnership अरे with the सब तो leverage. बेच ही रहे हैं, आम आदमी के लिए कुछ करिए। हाँ आप पहले बताते उनको हैं बोलने बताते दीजिए। हैं। Coming to your question that कि आम आदमी के लिए किया है कि नहीं किया है, that includes community engagement where the government is committed to ensure local communities and our आम आदमी for the resource infrastructures planning and implementation. हाँ, अब बहुत बोला जाता है कि वित्त मंत्री बड़े आंकड़े बताते हैं, तो अभी आंकड़े नहीं बताएंगे तो देश का अर्थव्यवस्था कैसा रहेगा? ना आम आदमी रहेगा, ना हम रहेगा, ना आप रहेंगे। So it is very important to know where and how the resource got allocated. So for the infrastructure development in the budget. तो सुन लीजिए थोड़े आंकड़े। Provision of more than 11 lakh crore rupees for the infrastructure is allocated. That is 3.4% of GDP. Speaker Madam, 1.5 lakh rupees to the state to support the resource allocation. Phase 4 of PMGSY, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, to project connectivity of the 25,000 rural areas. Yes, 25,000 rural areas. Financial support to the project with the estimate cost of 11,500, which crores. Yes, crores. 11,500 crores. Regarding the concern of local communities and our common people, I would like to assure the member who had given this question that government is taking several steps to address this concern. This includes providing adequate compensation for the land acquisition, ensuring the local communities for the benefit of the infrastructures, and addressing any environment and the social impact. आखिर में हम विपक्षी दल को सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि तकाजा है वक्त का कि तूफान से झूंझो, तकाजा है वक्त का कि तूफान से झूंझो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी, फाइल पर है पर जमीन पर है कि नहीं? आप इस तरह से इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं, बैठ जाइए। श्रीमती ईशिता पंडा से कि वे अपना प्रश्न पूछें। To the Honorable Speaker and the members of Parliament present here, I have to address it with utter shame that in the land of Mahatma Gandhi, our so-called representatives abroad refrained to stand for Satya and Ahimsa. Yes, I'm talking about UNGA's resolution that called for ceasefire at Gaza. Like every Indian, even I had expected that India will stand for anti-terrorism.
But to the irony, our Indian delegates just refrained to cast a vote. Please maintain the decorum of the House. So this brings me to the very first question to our Honorable Minister of External Affairs, that what does this abstention signify? Should we assume that terrorism is a part of our foreign policy now? या फिर ये डिप्लोमेटिक एक्शन के नाम में मंत्री जी का दोहरा चरित्र है? मैडम स्पीकर, क्या मंत्री जी की खामोशी को ही हम हमारा जवाब समझ रहे? Unlike our ruling government, we cannot avoid that 18,000. All of you please mark this number. 18,000 of our fellow Indians are captive in the land of territory. Some dead, some hospitalized, yet the Indian embassy has not reached out to help. सभा की गरिमा एक बनाए रखें। इसीलिए मंत्री जी कृपया बताइए that is the ministry ready yet with any effective plan to bring those innocent lives back to their homeland? I am standing here with hope. Perhaps the concerned ministry get the nation answered. Dhanyabad. Jai Hind. Thank you. I request the Honorable Minister of External Affairs to please reply. Respected Speaker Madam, I thank you for acknowledging my presence here, and I appreciate the concern of my fellow opposition here as well. Therefore, in the answer I would like to say that words like Satya and Ahimsa were spoken just now. Now India knows the weightage of these two words. Therefore, instead of focusing upon the abstention, we should focus upon the other proposal given by India, that is the two-state policy, which refers the partition of the state of Palestine into two states, one Arab and one Jewish. The reason why India was so excited about this proposal is because India is deeply pained by the loss of innocent lives and can share an empathetical shoulder when the topic is about terrorism. मंत्री जी, टू स्टेट पॉलिसी से टेररिज्म हट नहीं जाता। रुकिए जरा सब्र कीजिए, मुझे बोलने का मौका तो दीजिए. Which makes me answer the second part of the question, that is regarding terrorism. To question India's stance on terrorism is to ignore our history of fighting it. I believe the defense ministry here would be much more able to answer this question, because check upon the history books. India recognizes terrorism when we see it. So whether it is Hamas, Al-Qaeda or the Naxals, India has not, is not and will not hesitate to stand against terrorism. Our abstention here does not indicate weakness. It is the mark of a strategic diplomacy. Now, diplomacy would only feel like दोहरा चरित्र अगर आप खुद शकुनी मामा से प्रेरित हों. मैडम जी, कभी चाणक्य नीति पढ़ के आइए, तभी आपको ज्ञात होगा कि we have to achieve common ground so that the social evils are uprooted as well as the national interest of India is promoted too. For the last bit of the question regarding the rescue operation missions, I just have to say that it's shameful really that my opposition has no faith in the integrity of their own country's beliefs regarding anti-terrorism. Today's Republic of Bharat can be anything and everything but a coward. Had it been supporting cowardice, then Operation Ajay would not have happened. Had it been supporting cowardice, then more than 18,000 Indians would not have returned to their homeland from the conflicted regions. Thus, the Ministry of External Affairs will do its level best to make sure to put India's face on the global map as well as be accountable and responsible for it. Thank you. Jai Hind. Thank you. अब मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती दिशा शॉ से कि वे अपना प्रश्न पूछें. 2 जून 2023 260 लोग मारे गए, 1200 घायल हुए. उड़ीसा में 3 ट्रेनों का कोलिजन, भारत के इतिहास में सबसे घातक रेल दुर्घटना. फिर 17 जून पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कांचनजंगा एक्सप्रेस का कोलिजन, और एक बार फिर 30 जुलाई को मुंबई हावड़ा रेल के 18 कोचेस झारखंड में डिरेल हुए. अरे अब तो छोड़ो कल की बातें, वो बातें हुई पुरानी. कुछ तो करो इस देश के लिए, आखिर हमें हिंदुस्तानी. माननीय अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्रालय से मेरा पहला सवाल,
दुनिया के चौथे एवं एशिया के सर्वबृहत रेल नेटवर्क वाली देश की सरकार आखिर क्यों ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग तथा एंटी कोलिजन डिवाइसेस का इस्तेमाल सटीक मात्राओं में नहीं कर रही? मेरा दूसरा सवाल, बजट का 2.6 लाख करोड़ का हिस्सा तो मिला रेल मंत्रालय को, पर आज भी देश के रेलवे ट्रैक्स, कोचेस और रेलवे ब्रिजेस की मजबूती देखकर तो यही लगता है कि सरकार सिर्फ अपने घरों की छत की मजबूती करने में ही व्यस्त है। ऑपोजिशन प्लीज, आखिर कब तक? एक बार कर लिए बहुत हो गया। आखिर कब तक इन रेल डिरेलमेंट की घटनाओं को नजरअंदाज करती रहेगी ये सरकार? अंत में मैं मंत्रालय से अनुरोध करूंगी कि वह देश में बढ़ रहे इन रेल एक्सीडेंट्स की सटीक संख्या हाउस के सामने पेश करे। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद। I request the Honorable Minister of Railways to answer this question. आदरणीय अध्यक्ष महोदया, इन घटनाओं ने मुझे झकझोर के रख दिया है। आप लोगों के लिए भले ये एक चुनाव का मुद्दा होगा, पर मेरे लिए ये व्यक्तिगत क्षति है। मैं सदन और जनता को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जबकि दुर्घटनाएं हो सकती हैं और होती हैं, हमारी घटना से सीख रहे हैं महोदया, तथा उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भी प्रतिबद्ध है। दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए उपयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं तथा मुआवजा सुनिश्चित किया गया है। हमने कमेटी का भी गठन किया है जो कि हमें हादसे का सटीक कारण बताएगी। मैं नंबर सामने नहीं रखना चाहती थी। बंद करो, बंद करो, बंद करो, सुन तो लीजिए। Please maintain the decorum of the house. मैं नंबर सामने नहीं रखना चाहती थी, पर क्योंकि विपक्ष सवाल उठा रहा है, इसीलिए इस विषय को बड़े ही संवेदना के साथ सामने रखूंगी। ध्यान से सुनिएगा। विपक्ष के कार्यकाल में 172, जी हाँ 172 रेल हादसे प्रति वर्ष का एवरेज था, जो कि अब 68% घट चुकी है। यह नंबर को लेके मेंबर्स प्लीज, ये नंबर को लेके हम पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं, पहले वो अपने कार्यकाल में झांके, अपने गिरेबान में झांक के देखे। यही विपक्ष एक्सीडेंट इंडेक्स का 0.24 से 0.19 होने पर इतनी तालियां पीटती थी, और आज जब इंडेक्स 0.03 हो चुका है तो हम पे सवाल उठा रही है। ये कैसा दोहरा चरित्र है? बोलने दीजिए उनको। हम इस सफलता से संतोष नहीं करना चाहिए। हर एक हादसा खराब है। जनता की सुरक्षा के लिए हम कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। धन्यवाद। धन्यवाद। I request श्रीमती कृतिका हल्दर to ask her question, please. एक और स्टूडेंट ने की आत्महत्या। A 16-year-old JEE student committed suicide in Kota. हम सोचते होंगे इन्होंने सुसाइड अपने स्टडी प्रेशर्स की वजह से किया है, लेकिन इसके पीछे जिनका हाथ है, हम उन्हें कभी कुछ नहीं कहते। नज़र को बदला जाए तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदला जाए तो सितारे भी बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं जनाब, दिशा बदलने से किनारे अपने आप बदल जाते हैं। ठीक ऐसी ही एक दिशा की कमी महसूस होती है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। मुद्दे की बात पे आते हुए, जेईई नीट जैसे नेशनल लेवल एग्जाम्स पेपर लीक की खबरें सामने आई। पिछले 7 सालों में 70 बार अलग अलग परीक्षा के पेपर लीक हो चुके हैं, और आपने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे, झूठे दिलासे। तो आपकी सरकार ने क्या की? इस साल मेंबर्स उनको बोलने दीजिए। इस साल नीट धांधली की वजह से रैंक्स का 3 गुना इन्फ्लेशन हुआ। ऑनरेबल स्पीकर मैम, मैं आपके माध्यम से हमारे शिक्षा मंत्री से यह सवाल पूछना चाहूंगी कि आपकी सरकार कैसे ये गारंटी देगी कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा? धन्यवाद। धन्यवाद। I request the Honorable Minister of Education to answer this query. धन्यवाद ऑनरेबल स्पीकर मैडम। हमारे विपक्ष के साथी गारंटी की बात कर रही हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि न कश्चित किमपि निश्चितम वदति, अर्थात कोई भी कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर में आता है, जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का समान अधिकार होता है।
और हमारा नियंत्रण केवल हमारी कर्मों पर है, उनके फलों पर नहीं। वो कहते हैं ना कि कर्मणैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फेलो हेतुर्भु माते संगत्व कर्मणि। And to prevent any such incident to occur in future, our government has implemented several steps, including use of technology in examination processes like biometric verification and CCTV surveillance. Second, centralized controlled by NTA and strict security of exam centers and regular audits and investigation. Reforms in counseling and seat allocation, enforcing strict penalties for malpractices, जिसमें 10 साल तक जेल के साथ साथ 5 लाख रुपए तक का जरिमाना दिया जा सकता है। और बात इस बार की पेपर लीक की किया जाए तो हमने री-नीट भी कंडक्ट करवाया था। किस री-नीट की बात कर रहे हैं आप? नीट लिखा 24 लाख बच्चों ने और री-नीट सिर्फ 1500 बच्चों का। अब हर जगह तो पेपर लीक नहीं हुआ था ना। एग्जाम इतने सारे बच्चों का एक साथ एग्जाम लेना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, और उन्हीं बच्चे एग्जाम दिए हैं जिनके पास वैलिड रीजन था एग्जाम देने का, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन था और जो री-नीट के लिए रजिस्ट्रेशन किए थे। या तो हमारे प्रयास विपक्ष देखना नहीं चाहते या फिर उनके आंखें ही खराब हो गया है। मेंबर्स प्लीज। अब विपक्ष का ध्यान तो केवल समस्या पर होता है, पर हम समस्या को देखते भी हैं और उसे सुलझाते भी हैं। और आपने जो कहा ना कि अगर नजर को बदला जाए तो नज़ारे तक बदल जाते हैं, अगर सोच को बदला जाए तो सितारे भी बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं पड़ता, केवल दिशा को बदलने से किनारे अपने आप बदल जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एजुकेशन जैसे गंभीर मुद्दों पर आपका हमारा ना कर, अगर हम मिलकर काम करें तो दिशा अपने आप बदल जाएगी। तो दिशा बदलने के साथ साथ किनारे तो अपने आप बदल ही जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं अनुरोध करूंगी श्री शुभम सिंह से कि वे अपना प्रश्न पूछें। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत में महिला सुरक्षा की स्थिति खस्ताहाल है। इट इज इन रूइंस। द सेफेस्ट सिटीज आर नो मोर सेफ। Our metropolis overladen with cries of help. Our motherland is no more sacred for a woman. To quote the comedian Veer Das, I come from two Indias. One where women are worshipped during the day, the other gang raped at night. The NCRB data disclosed a staggering 4,45,000 cases of crime against women in the year 2022, translating to 51 FIRs per hour. The issue of impunity, the knowledge that one can rape a mother, a daughter, a child, and get away with it, feeds the pathology that keeps this issue dire and growing. I want this message to reach the treasury benches loud and clear that you, the ruling party, has failed in its job. Its job to create a deterrent, an alternative that truly alters the perpetuation of these heinous acts. You have failed the very people that voted you to power. Opposition party, अध्यक्ष please. महोदय, आपके माध्यम से मैं सत्ता पक्ष से पूछना चाहता हूं कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के इस बढ़ती दर को देख वो अभी भी हाथों में हाथ धरे क्यों बैठी है? धन्यवाद। धन्यवाद। I request the Minister of Women and Child Development to please answer the grave question. अरे अगर हाथों पर हाथ धरे बैठे होते तो देश का हाल भी आप ही की सरकार की तरह बेहाल होता। Our government is constantly trying to ensure the safety and security of women of our country. Other than that, we also have provided helpline number to each and every state of the nation. We have also several acts to ensure the safety and security of the women. We have Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention Act of 2013, which ensure the safety of women at their workplaces. POCSO, यानी Protection of Children from Sexual Harassment Act of 2012. अरे सत्ता तो आपकी भी थी, पर शायद तब पुलिस सो रहे थे, जिनको हमने जगाया है। Honorable members, please maintain the decorum of the house. Members, please maintain the decorum of the house. Let her speak, please. Other than that,
Our government have introduced Swadhar Griha scheme, which ensure the basic facility to all the women who are socially and economically backward, like food, shelter, clothing and medical treatment. Our government have set up special women courts which address the cases of crime against women. At last, I just want to say that मैं इसी देश की मिट्टी की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं इसी देश की मिट्टी की सौगंध खाकर कहती हूँ कि इस देश की एक और बेटी को निर्भया नहीं बनने दूंगी, निर्भया नहीं बनने दूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद। I request Sri Rana Pratap to ask his question, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, जो पेट्रोल और डीजल की सारे साथी इस सरकार ने आम आदमी पे थोपी है, इससे देश का हाल और भी बेहाल हो गया है। इस मूल्य वृद्धि से पारिवारिक अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। पिछले 3 सालों में पेट्रोल की कीमत एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 16 बार बढ़ाई गई है, 16 बार। और पेट्रोल की कीमत तो अभी 100 पार। देश की इस हालत को देखते हुए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। बढ़ाए टैक्स, महंगे तेल, हर दिन एक सजा। जनता की कमाई और सरकार ले मजा। खाली थालियों में कैसे आएगा निवाला? अरे खाली थालियों में कैसे आएगा निवाला जब बजट में सिर्फ अमीरों का बोलबाला। Members of the opposition party, do मैं not माननीय behave like मंत्री children. से ये पूछना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर क्या ठोस कदम उठाए हैं। और दूसरा प्रश्न, क्या आगे आम आदमी पेट्रोल या डीजल का लाभ उठा पाएंगे या फिर आप उन्हें इस महंगाई के सागर में डुबा के मारना चाहती हैं? Thank you. I request the Honorable Minister of Finance to please answer the question. माननीय अध्यक्ष महोदया जी, कभी कभी बीमारी के इलाज के लिए दवाई भी लेनी पड़ती है, कभी कभी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इंजेक्शन भी लेना पड़ता है और जिससे तेज बुखार आता है और उससे लाभ भी होता है। तो मैं माननीय सांसदों के विचारों का हम आदर करते हैं, परंतु हम विपक्षी साथियों को कई राज्यों द्वारा जीएसटी में लगे गए कर के किए जाने वाले को याद दिलाना चाहते हैं। पेट्रोल और डीजल पर राज्य सरकारों की तरफ से 15% से 35% से यस 15% to 35% कर यानी टैक्स लगाया जाता है। अतः पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि में केंद्र सरकार का सत्य पर ठिकरा फोड़ना ठीक नहीं है। बहुत लोगों से सुना होगा कि रुपए हाथ का मैल है। पैसा आपके लिए हाथों का मैल होगा, गरीबों के लिए नहीं, समझे मैडम? बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। रुपए हाथ का मैल है, ऐसा हमने कब बोला? सुनिए तो सही। बहुत लोगों से सुना होगा कि रुपए हाथ का मैल है, पर जनाब समझो तो सही, यही रोटी है, यही कपड़ा है, यही मकान है, हर आम आदमी का आश्रय है और हम आप लोगों का सहारा है। बजट देश की मूल कड़ी है जिसने हमको भारत को थर्ड इकोनॉमी बनाने का रास्ता दिखाया है। हम और हमारी सरकार आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी और 90% तक विकास दर हासिल करेगी। धन्यवाद। Thank you. I request Srimati Shreyana Rautrai to ask her question, please. Honorable Madam Speaker, in the Union Budget for the financial year 2024 to 25, India's defense budget was a whopping 6 lakh crore rupees. Therefore, I would like to ask the following questions to the Honorable Ministry of Defense. My first question is, why does the Ministry of Defense stubbornly waste the majority of budget on bloated salaries and pensions? Minister Sahab, सरहदें जो रखते हैं सुरक्षित अपनी जान से, सरहदें जो रखते हैं सुरक्षित अपनी जान से, उनके लिए कब होगी सरकार तैयार ईमान से? जो मौत से लड़कर
जो Honorable मौत से- members, please let your own member speak. जो मौत से लड़कर भी देश को बचाते हैं, उनको क्या सरकार सिर्फ खोखले वादों से थमाते हैं? My second question is, how can the Ministry of Defense justify its negligence in modernizing India's defense system while even smaller nations like Israel has surpassed us with the state of our defense system? It has been quoted, Atmanirbhar Bharat is not just a vision, it is a well thought, carefully crafted plan to make India more stronger and self-reliant. I repeat, self-reliant in every sector. अब जब बात सेल्फ रिलायंस की उठी ही है तो जनाब, why do India still rely on foreign imports even after 78 years of independence? Thank you, Madam Speaker. Thank you. Honorable Minister of Defense, please reply to the query. Thank you again, Madam Speaker. It is my humble request to my friend from opposition to not cast a veil of lies in the room with an improper usage of words. The hard-earned money is nobody's to waste, and I assure you, Speaker Madam, that every single rupee that is allocated to the defense is being utilized only and only for the benefit of the country. Let me shower some light upon the defense budget and expenditure. In 2024-25, this year's defense allocation was of rupees 6.22 lakh crore. आपको हिसाब चाहिए तो देते हैं हम. Capital expenditure of rupees 1.72 lakh crore for acquiring and building new assets. Rupees 1.05 lakh crore for domestic procurement. And recently, India's Defense Council approved military hardware procurement worth rupees 1.45 lakh crore. Opposition asked about our weapon imports from other countries. Here is the answer. Indigenous procurement funds, where 99% of the funds will be spent on indigenous suppliers. Indian IDDM, indigenously designed, developed and manufactured by Indian and make in India. World's largest importer कोई और है क्या? अरे क्या फर्क पड़ता है? Let him घोटाले speak. करने वाले Opposition. घोटाले करने वाले ईमान की बात ना ही करे तो बेहतर है. When the question comes to are we behind our neighboring countries, शायद विपक्ष को केवल पड़ोसी देश की प्रगति ही दिखती है. हम बातों से नहीं काम करके दिखाते हैं. Indigenous defense production include Tejas Mark 1 and 2, INS Vikrant, Arjun MBT and Agni 5, BrahMos 1 and 2. बहुत लंबी लिस्टें चाहिए तो आपको भेजने का कष्ट जरूर कर सकते हैं. India has increased joint ventures with USA, Russia, Israel and France for co-development of advanced systems. I can assure you, Madam Speaker, when it comes to military advancement, India is nowhere behind any other superpower in the country. And we stand with our heads held high and equal to any other country in the world. और आपको ये बता दें कि जब बात देश की सुरक्षा पर आती है तो रक्षा मंत्रालय ना ही पहले कभी समझौता की है और ना ही आगे करेगी. धन्यवाद. Thank you. I request Rikostav Das to ask his question, please. आज़ादी के 78 साल बाद भी भारतीय रेलवेज में क्या सुधार आया है? आज भी जनरल कोच में हद से ज्यादा भीड़ हो रही है. यह देखते हुए भी क्यों जनरल कोचेस की संख्या को घटाकर रिजर्व कोचेस की संख्या को बढ़ाया जा रहा है? महोदया, अगर ऐसा ही होता रहा तो एक सब्जी वाला और एक डेली पैसेंजर कैसे अपने मंजिल तक पहुंचेंगे जब उनको यही नहीं पता कि वो ट्रेन के अंदर घुस भी पाएंगे या नहीं? कैसे एक गरीब आदमी कैसे उस महंगा रिजर्व टिकट को खरीद पाएंगे? कैसे एक आदमी जिसे इमरजेंसी में कहीं जाना हो, क्या वो उसी वक्त टिकट खरीद भी पाएगा? आप क्या बात करते हैं? वंदे भारत और बुलेट ट्रेन ना, आज भी ट्रेन्स घंटों लेट चलता है हमारे देश में. लोग आज भी लटकते हुए सफर करते हैं. ट्रेन में साफ सफाई सही से नहीं हो रहा है. शौचालय में कभी पानी भरा हुआ रहता है तो कभी शौचालय में हाथ धोने तक का पानी नहीं मिलता. वंदे भारत जैसे एक्सप्रेस ट्रेनों को आप धीमी गति के जैसे चला के बोलते हैं कि रेल का विकास हो रहा है देश में. Opposition, do not behave like children. रेल मंत्रालय से मेरा प्रश्न है कि इतनी दिक्कतों के बावजूद
क्यों वंदे भारत जैसे आधुनिक ट्रेन्स पर इतना ध्यान दिया जा रहा है, जबकि भारतीय रेल में अभी भी बुनियादी ढांचे पर ही इतना काम करना बाकी है? Thank you. I request the Honorable Minister of Railways to answer this question. आदरणीय महोदया, रेल मंत्रालय IRCTC के द्वारा यात्रीगण के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटा हुआ है। करीबन 2 करोड़ लोग रोजाना भारतीय रेलवे का इस्तेमाल करते हैं और इनको संभालना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसलिए मंत्रालय ने 2500 अतिरिक्त जनरल कोचों की संख्या में वृद्धि करने की घोषणा की है। वंदे भारत पे हमें गर्व है। यह ना सिर्फ आधुनिक बल्कि आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा उदाहरण है। जब भी इस सांसद में आधुनिक सेवाओं की बात छेड़ी जाती है, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, 4 लेन सड़कें हो या फिर UPI हो, हमेशा उस पर सवाल उठाया गया है। कहा गया है इन सब की क्या जरूरत जब देश की अधिकतम जनसंख्या गरीब में आती है। पर यह हमें समझना होगा कि अन्य देशों से कंधों से कंधे मिला के चलने के लिए यह आवश्यक है। और रही बात खराब रेल लाइन और धीमी गति की, तो ये आप ही की सरकार की देन है जिसको हम सुधार रहे हैं। हम रेलवे की बुनियादी ढांचों में विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हाल में सरकार ने कई नई रेलवे लाइनों का उद्घाटन किया है तथा पुरानी लाइनों का उन्नयन भी किया है। इसके अलावा हम यात्रियों का ट्रेन तथा स्टेशन पर सुविधाओं में वृद्धि कर रहे हैं। धन्यवाद। Thank you. I now request Shri Anurag Nayak to please ask his question. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि चाहे मंत्रालय इस बात पर ध्यान दे या ना दे, लेकिन मैं इस बात पर आलोक डालना चाहूंगा कि उन निर्दोष भारतीयों का क्या जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और युद्ध के कारण अपने देश में लौट नहीं पा रहे हैं, जो अपने देश की मिट्टी को महसूस करने तक के लिए तड़प रहे हैं, उनका क्या? उनके लिए कोई Please maintain the decorum of the house. उनके लिए कोई कदम उठाया भी गया है या नहीं? यदि हाँ तो अवगत कराएं। मेरा दूसरा सवाल है कि युद्ध में वहां निर्दोषों की जान जा रही है और यहाँ हमारी सरकार को तेल और कोयले की पड़ी है। क्या तेल और कोयला निर्दोषों की जान से ज्यादा कीमती हो गया है? Let your own member speak first. सरकार रूस से आयात पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रही है? धन्यवाद। Thank you. Honorable Minister of External Affairs, please reply to this question. पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और ये सब सिर्फ खोखले वादे नहीं बल्कि इसका हमको परिणाम भी मिल चुका है। ऑपरेशन गंगा के तहत 76 हवाई जहाजों की मदद से 22,500 से अधिक भारतीयों को अपनी जन्मभूमि में पुनर्वास कराया गया। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एयरप्लेन्स का रास्ता ट्रैक हो रहा था। युद्ध भूमि के क्षेत्र के ऊपर कोई हवाई जहाज नहीं, आसपास के हवाई जहाज भी डरे हुए सहमे हुए रिटर्न कर रहे थे। बट इवन एट दैट टाइम ऑफ डिस्ट्रेस the Indian Air Force made sure that it soars high in the sky, filled not with fuel but with pride, to make sure our fellow Indians are rescued from those distant lands. I am surprised. No one really received news of this, I guess. No heeds to positive response whatsoever. In this democracy, we would actually prefer constructive criticism and not false and baseless accusations. इतने सालों के राजनीतिक तजुर्बों के बाद भी अगर मैं उनको सिखाऊं कि उनका कार्य क्या होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि किसी कारण के लिए ये सब ठीक ही है कि आप विरोधी दल में हैं और हम सत्तारूढ़ दल में। परवर्ती प्रश्न में तेल व्यापार का मुद्दा उठाया गया था। तो मुझे बता देने दीजिए कि रूस से तेल खरीदने से ना ही सिर्फ इंडो रशिया रिलेशनशिप बल्कि इंडिया और अमेरिका का रिलेशनशिप भी बेहतर होता है। कैसे? मैं बताता हूं। After purchasing Russian oil, the global price of oil did not shoot up. Since it did not shoot up, India did not have to pay more. बंद करो बाजी बंद करो जुमलेबाजी बंद करो। Honorable members, you are in a parliament. Please maintain the decorum of the house. सुनने का हिम्मत रखे तो हम बोलें।
सिंस इंडिया डिड नॉट हैव टू शूट अप पे मोर फॉर द ऑयल प्राइस, तभी तो जनाब आप अपने महंगे महंगे गाड़ियों में आज बैठ के संसद में आए हैं। रूस से तेल खरीदने का तात्पर्य यह बनता है कि तेल व्यापार में अमेरिका का मोनोपोली ना रहे। इसलिए अनुमानित जो हुआ था कि तेल का भाव बढ़ेगा, तो तेल का भाव नहीं बल्कि भारतीय रुपए का भाव बढ़ा है। I can see that bright and beautiful day where the whole world is not using dollars, not using pounds, but the Indian rupees as a means of trade. इसी से ही तो भारत आज की दुनिया में विश्व गुरु बन पाएगा। क्या है ना कि इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री सुनते सुनते हम थक चुके हैं। यह सरकार अपना सब कुछ लगा देगी ताकि कल बच्चे एनसीईआरटी टेक्स्ट में यह पढ़ें कि इंडिया इज अ फर्स्ट वर्ल्ड फुल्ली फ्लेज्ड डेवलप्ड कंट्री। अब तक क्यों नहीं हुआ, कब होगा? जनाब हमारे पहले शायद सत्ता में आप थे। हाँ, अगर उस समय टैक्स रेवेन्यू का पैसा कहां गया, किधर गया, उसका अगर रसीद दिखा देंगे ना, तो अभी मैं अपने मूछे मुंडवा के संसद में अपनी चुप्पी बरकरार रखूं। खैर हमें तो आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हैं। अतः मैं इतना बोलना चाहूंगा कि विदेश मंत्रालय के इस उत्तर के तहत मैं ये आशा कर रहा हूं कि देशवासियों के मन में जो भी प्रश्न और आशंकाएं थीं, उसके ऊपर पूर्ण विराम लग जाना चाहिए, वरना विरोधी दल को हम अपने कार्य से अवगत कराने के लिए संसद में सदैव उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you. I now request Srimati Ardakini Suyam to ask her question, please. Honorable Speaker, ma'am, education doesn't come along with books. Children's mental development should take place and mental potential should progress. Of course, your government did introduce NEP 2020, but has it made any progress in lessening a child's mental stress? According to your government, a child's coaching should start from the age of 16. So does a child below the age of 16 not attend coaching, or their mental health doesn't bother you? In 2023, 26 suicides took place in Kota, and this year 13 such cases already took place. But has their government taken any initiative in fixing the problem? No. But rather, they fixed the fan spring there instead of focusing on fixing the education system. Ma'am, the big question here is, in order to stop such cases, is fixing the fan more important than fixing the education system? So is your government going to sit back and watch our youth die? So here is my question. A, what is the government doing for the child's mental health? B, what are they doing for the youth? Thank you. Thank you. Honorable Minister of Education, please reply to this question. धन्यवाद ऑनरेबल स्पीकर मैडम। श्रीमान, एक दोहा है, ध्यान से सुनिएगा। कबीरा खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। श्रीमान, अब इस दोहे में जितनी महत्व कबीर के बाजार में खड़े होने की है, उतने ही महत्व इनके सवालों में है। और कहते हैं ना कि स्वल्प ज्ञान हानिकारक होता है। अब या तो हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर किए गए प्रयासों को ये समझे नहीं है, या फिर समझना ही नहीं चाहते। इन्हें लिखित में भी हमारी नीति स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। महोदया, इन्होंने NEP 2020 पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। अगर ये थोड़ी और जानने की कोशिश करते तो इन्हें पता चल जाता कि लगभग इसी तरह का शिक्षा प्रणाली पश्चिमी देशों में सालों से चलता आ रहा है। और हाल ही में 19 फरवरी 2024 को हमारा सरकार शिक्षा के लिए 3 नए IITs, 3 IIMs, 20 KVs के साथ साथ 13 नवोदय विद्यालयों का उद्घाटन करवाया है। और आप पूछ रहे हैं कि हमारी सरकार ने क्या किया है, तो हम आपको बता दें कि हमारी सरकार ने मेंटल हेल्थ के लिए मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, दूसरा किरण हेल्पलाइन नंबर, तीसरा आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम, चौथा मानस आप जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध करवाया है। और NEP 2020 में बच्चों के फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए केवल एकेडमिक्स पर ही नहीं बल्कि होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस दिए हैं हम। और होलिस्टिक डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक हम एक स्वच्छ वातावरण में ना रहे। और इसीलिए हमारी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था, जो कि चल रहा है और बहुत ज्यादा सफल रही है। और
रही बात कोचिंग गाइडेंस की, तो हम ये नीड्स पर गाइडेंस सेक्शन में आप क्लियरली देख सकते हैं, जिसका एक बिंदु है टू प्रोवाइड कैरियर गाइडेंस इन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग फॉर mental well-being of students. It also mentioned for registration of coaching centers, it is mandatory to have counseling services, ताकि बच्चे बिना किसी चिंता के पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। और रही बात, कोई ध्यान नहीं देगा कि बच्चों की बैग की भार कितना है, तो हम आपको बता दें कि ये तो ऐसी बात हो गई ना जनाब, कि जब बिल्ली दूध पीती है तो अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर सोचती है कि किसी ने उसे देखा ही नहीं। पर हम सब देखते भी हैं और कार्य भी करते हैं। और श्रीमान, आप खुद ही सोचिए, अगर हम इतने बुरे होते तो जनता हमें 3 बार क्यों चुनती? Thank you. Next, I request Srimati Shrishti Rani to please ask her question. दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न आएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। आज दिल्ली में भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति है, जहां उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात हो रही थी, वहीं दूसरी ओर उससे उसके खास दर्जे को भी छीना जा रहा है। ये कहानी आज की नहीं बल्कि आज़ादी से लेकर आज तक की है। ये कहानी नेहरू सरकार की नहीं, ये कहानी है अटल सरकार की, जिसने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का सपना देखा था। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगी, पहला, जब दिल्ली अपने आप में इतना खास महत्व रखता है, तो अचानक केंद्र और यहाँ की सरकार के अलग होने से उससे वो दर्जा क्यों छीना जा रहा है? दूसरा, सिविल सेवा जैसे महत्वपूर्ण अधिकार को लोगों द्वारा निर्वाचित नेता की जगह केंद्र द्वारा लाए गए एलजी के हाथों में क्यों सौंपा जा रहा है? तीसरा, क्या यह सब जो दिल्ली में हो रहा है वो पूर्णतः संवैधानिक है? अगर है तो कैसे? धन्यवाद। थैंक यू। माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इसका उत्तर दें। धन्यवाद महोदया। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है। महोदया, देखे आगे क्या क्या होता है। इस बिल के विषय पर विपक्ष ने अपनी पूरी समझ का उपयोग किया और अपने विचार रखे। मैं इसकी सराहना करता हूं। माननीय सभापति महोदया के माध्यम से मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बिल का उद्देश्य केवल और केवल दिल्ली को भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख बनाना है। अगर विपक्षी दल को इसमें भी दिक्कत है तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है। विपक्ष महोदया, जिस बिल की आप बात कर रहे हैं वो 19 मई 2023 को राष्ट्रीय प्रबंधन से जुड़ा है। इस बिल में अध्यादेश से बनी हुई व्यवस्था के स्थान पर विधि द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था लाने का प्रयास किया गया है। यह बिल संविधान सहमत है और सुप्रीम कोर्ट से आदेशों का पालन करती है। महोदया, मैं बता दूं, दिल्ली कई मायनों में अन्य राज्यों से अलग है, क्योंकि यहाँ संसद भवन है, सुप्रीम कोर्ट है, कई संवैधानिक हस्तियां मौजूद है और दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आते हैं। इसलिए दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। और एक कविता की पंक्तियां हैं ना कि अक्सर गागर छलका करती, सागर नहीं छलकते देखे, नकली कांच चमकता अक्सर, हीरे सदा झलकते देखे। तो आइए महोदया, आपके अल्प ज्ञान को पूर्ण ज्ञान में बदलने का प्रयास करते हैं। दिल्ली स्वतंत्रता पूर्व भी सत्ता का केंद्र रही है, राजधानी रही है। स्वतंत्रता के समय जब दिल्ली संविधान बनने की प्रक्रिया हुई थी तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने दिल्ली की स्थिति को लेकर विस्तृत विचार किए थे। माननीय सभापति महोदया, पत्तवी सीतारामैया समिति ने भी दिल्ली को लगभग राज्य स्तर का दर्जा देने की सिफारिश की थी और उसी कमेटी की चर्चा के दौरान नेहरू,
सरदार पटेल और अंबेडकर जैसी बड़ी हस्तियों ने इसका जमकर विरोध किया था। दिल्ली को स्वतंत्रता के बाद विधानसभा दी गई, हालांकि उसे कुछ सालों में ही भंग कर दिया गया था और दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। और 1991 में संवैधानिक संशोधन किया गया, जिसमें धारा 49 ए डाली गई और दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। जब जब दिल्ली पर अधिकार की बात होगी तब तब इस विशेष धारा की बात होगी। यह एक विशेष धारा है जो केंद्र शासित प्रदेश और राजनीतिक क्षेत्र को व्याख्यायित करती है। आज आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, कल को उड़ीसा, कल को किसी और दूसरे राज्य की बात करेंगे, फिर क्या? नहीं, ऐसे उछलने से कुछ नहीं होगा, टिप्पणी करने से कुछ नहीं होगा। दम है, चुनाव लड़िए, जीतिए। कभी इस बालकनी में आकर के भी बैठ के देखिए, यहाँ से नज़ारा कैसा दिखता है। क्या दिल्ली सभी राज्यों से अलग नहीं है? यह बात किसी राज्य या किसी केंद्र शासित प्रदेश की नहीं है, यह बात दिल्ली की है, यह बात देश की राजधानी की है। हम यह नहीं कर सकते कि एक केंद्र शासित प्रदेश रहते हुए राज्य की शक्तियों का आनंद उठाए। यह धारा कब और कहां लागू की जा सकती है, इसका जवाब ना भारत सरकार के पास है, ना संसद के पास है और ना ही जनता के पास है। हमें अपनी मानसिकता ही बदलनी पड़ेगी, सीमित करना पड़ेगा, संयत करनी पड़ेगी। लोगों को साथ आना होगा, आपको साथ आना होगा, हमें साथ आना होगा। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री अभिजीत अभय से कि वे अपना प्रश्न पूछें। मेरे विपक्षी साथियों का आक्रोश देखकर ऐसा लगा कि किसी ने उनके दुखते नब्ज पे हाथ रख दिया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों का, जिसे बुरा लगे वो हट जाए सामने से। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहता हूं कि फरवरी की खूबसूरत सुबह और सजे हुए संसद से बरसते हुए उन झूठे वादों के लिए जिम्मेदार कौन है? हमारे विपक्षी साथियों द्वारा अपने संबोधन को अनर्गल, दोहरे चरित्र, जुमले और शकुनी जैसे शब्दों से सजाया गया है। तो मैं इस सदन को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि किसके वक्तव्यों से ये सब ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की वादा की थी। क्या ये एक चुनावी जुमला नहीं था? हमारे प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार। क्या ये चुनावी जुमला नहीं था? आज वित्त मंत्री जी ने कहा कि हमको अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आंकड़ों को समझना होगा। मैं मानता हूं कि अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें आंकड़ों को समझना होगा, लेकिन आपको ये मानना चाहिए कि उन गरीबों को आंकड़े समझ में नहीं आते हैं। उन्हें महंगाई और बेरोजगारी तब समझ में आती है जब उनके थाली में खाने कम हो जाते हैं, जब उनके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, जब वो पूरी दुनिया से लड़ने का क्षमता रखने वाला है किसान एक बंद कमरे में गरीबी और महंगाई से हार जाता है। उसको गरीबी वहाँ समझ में आती है। 2022 तक सबके सर पे छत देने का वादा एक प्रधानमंत्री जी ने किया था। अगर उनको याद हो तो मैं फिर से उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जरा उसको याद कीजिए और छत देना तो छोड़िए, आप छत छीनना शुरू कर दिए हैं। अगर दे नहीं सकते तो कम से कम छीनिए मत। बोलने दीजिए उनको। प्रधानमंत्री महोदय ने एक बड़ा अच्छा लाइन यूज किया, वसुधैव कुटुंबकम। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे कुटुंब का एक हिस्सा जल रहा है, दर्द से कराह रहा है, उस हिस्से को बचा लीजिए। और हमारे विपक्षी साथियों द्वारा बड़े सिनेमैटिक वे में वर्ड यूज किया गया, हम जान दे देंगे, मूछें मुड़वा लेंगे। अरे भाई, नहीं चाहिए आपकी जान, हमें नहीं चाहिए आपकी मूछें। जनता की जान बख्श दीजिए, हम उसके लिए आपका शुक्रगुजार रहेंगे। मैं जानता हूं कि शब्दों की जादूगरी और आंकड़ों की बाजीगरी आपसे बेहतर किसी को नहीं आती, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारी फाइलों में गांवों का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठी और ये दावे किताबी हैं। हमारे विपक्ष के किसी साथी ने कहा कि इन्हें केवल समस्या दिखती है, इनकी नज़र खराब है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि टूटे हुए लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही का करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पे भारी है तुम्हारी, तुम देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं। हमारे विपक्षी साथियों के द्वारा बार बार ये कहा गया, हम इधर बैठे हैं, आप उधर बैठे हैं। हम उन्हें कहना चाहते हैं कि दर्द के हदों से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। कोई कितनी भी बुलंदी पे चली जाए, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। इसलिए सत्ता के मदहोशी से बाहर निकालिए। जहां आज आप बैठे हैं वहां कल हम बैठे थे, और जहां आज हम बैठे हैं कल फिर आप वहां होंगे। सत्ता के मद में चूर न होइए। एक शुभचिंतक होने के नाते हम आपको ये राय देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
I request the Honorable Prime Minister to please answer this question. माननीय अध्यक्ष महोदया का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे सदन को संबोधित करने का मौका दिया है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के एक साथी ने अभी कहा कि जिले इलाही का करम देखते हैं, उन्हें यही नजर आता है। उनके पास कोई विजन नहीं है। हमारे पास 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखने का विजन है। हम उनके इस मानसिकता पे यही कह सकते हैं कि चिराग देख के मचल रही है हवा, कि चिराग देख के मचल रही है हवा, कि कुछ दिनों से तेज चल रही है हवा, कि वो जो किस्से बनाते हैं मेरे बर्बादी के, कि वो जो किस्से बनाते हैं मेरे बर्बादी के, कि उन्हें पता नहीं कुछ दिनों से रुख बदल रही है हवा। इसीलिए आप 303 से 240 पे आ गए। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने आधारभूत संरचनाओं के विकास, जन कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा के क्षेत्र, रोजगार के सृजन में नई ऊंचाइयां हासिल की है। मैं बताना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार आई थी तो भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में इसे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत 2027 तक दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। एक विपक्ष के साथी ने कहा कि ये लोग आंकड़ों की हेराफेरी करते हैं, जादूगरी करते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि हमारे पास ये भी आपको आंकड़े झूठे लगते होंगे कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। यही आपकी सबसे बड़ी परेशानी है। ये विकास के आंकड़े हैं, ये हमारे आंकड़े हैं। आपके पास आंकड़े क्या है? 100 करोड़, 200 करोड़, 2000 करोड़, 1000 करोड़ भ्रष्टाचार और घोटाले का आंकड़ा है। और यही कारण है कि हम यहां बैठे हैं और आप वहां बैठे हैं। और हमसे और आपसे ज्यादा समझदार इस देश की जनता है। इसलिए उन्होंने आपको पिछले 10 साल से वहां बैठाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से 140 करोड़ भारतीयों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सशक्त हाथों में है। हमारे लिए राजनीति जन सेवा और राष्ट्र सेवा का माध्यम है। भारत शांति को स्थापित करना भी जानता है और अपने शांति का सुरक्षा करना भी जानता है। मैं 140 करोड़ भारतीयों को यह विश्वास दिलाता हूं कि चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, अगर भारत के भूभाग पे कब्जे करने का कोशिश करेगा या हमला करेगा तो मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि वे अगले दिन का सूरज नहीं देख पाएंगे। मैं कहना चाहूंगा कि कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले, कि लहर लहर तूफान मिले और मिले मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने कि इन हालातों में भी आता है दरिया करना पार हमें। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के पटल पे कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। हमारी सरकार जब आई थी तो प्रति व्यक्ति आय 90,000 था। हमारी सरकार ने इसको 2,12,000 करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार आई थी तो राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 96 लाख किलोमीटर थी। उसे बढ़ाकर हमारी सरकार ने 1.5 लाख किलोमीटर करने का काम किया है। हमारे Honorable members, please maintain the decorum of the house. Please maintain the decorum of the house. मैं बताना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार आई थी तो मेडिकल कॉलेज की कुल संख्या 384 थी। हमारी सरकार ने उसे 660 करने का काम किया है। आज मैं बताना चाहता हूं कि भारत में हमारी जो सोच थी कैशलेस इकोनॉमी की,
आज भारत में लगभग 76% जो इकोनॉमी है वो ऑनलाइन टारगेट के जरिए हो रहा है। मैं विपक्ष के साथी को ये बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने का काम किया, लेकिन विपक्ष के राज्य सरकारों ने जिस तरीके से इसमें अरंगा लगाया, कहीं ना कहीं इसके असफलता की कारण बन सकती है। मैं कहना चाहूंगा कि जरूरत है अपने ऊपर शोध कीजिए, कि जरूरत है अपने ऊपर शोध कीजिए, इस तरह बेवजह न विरोध कीजिए। मैं कहना चाहूंगा, अभी विपक्ष के एक साथी ने महंगाई पे सवाल पूछा। मैं कहना चाहूंगा कि जब आपकी सरकार थी तो औसत महंगाई दर 8.1% थी। हमारी सरकार के दौरान यह घटकर 5.1% हो गया है। मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने अभी रोजगार पे सवाल पूछा। मैं बताना चाहता हूं कि आपके सरकार के 10 साल के कार्यकाल में कुल सरकारी नौकरियां 6 लाख दी गई। हमारी सरकार ने कुल नौकरियां 10 लाख देने का काम किया है। ईपीएफओ के आंकड़े के अनुसार हमारी सरकार ने प्रतिवर्ष 1.92 करोड़ रोजगार सृजित करने का काम किया है। लेकिन विपक्ष के साथियों को देश के संस्थाओं पे तो कोई भरोसा है नहीं। मैं दुनिया के संस्था का उदाहरण देना चाहता हूं। आईएमएफ के आंकड़े के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष ऑटोमोबाइल सेक्टर में 25 लाख रोजगार सृजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही भारत में प्रतिवर्ष लगभग 65 लाख रोजगार इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मणिपुर के प्रश्न पे हमारे माननीय मंत्री ने उत्तर दिया। मैं बताना चाहता हूं कि मणिपुर में जो हुआ वो मानवता को शर्मसार करने वाला है, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से राजनीति कर रहा है वो उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। मैं इस सदन को 140 करोड़ भारतीयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मणिपुर में शांति का सूरज फिर से खिलेगा और मणिपुर भारत के मानचित्र पे फिर से उभरेगा। मैं सूरज कब देखने जा रहे हैं मणिपुर? अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री, गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री ने इस पे कड़ी निगरानी रखते हुए इसको अपने बस में लाने का पूरा प्रयास किया है। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहूंगा कि हमारा जो 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है उसमें साथ आइए। मैं यही कहूंगा कि मैं उगता हूं, मैं बढ़ता हूं, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूं, कुचला जाऊं यदि धूलि सा, आंधी सा पुनः उभरता हूं, आंधी सा पुनः उभरता हूं। Thank you. The question hour comes to an end. Honorable Madam Speaker, a serious breach of privilege has been committed by the leading newspaper of Delhi. While commenting on the recommendation of the Public Account Committee, the paper has attributed dishonest motive, and I have requested you to allow me a question on that matter now. Honorable Speaker, before this site put for the vote any of their developmental project and an increment in GDP, let them get to know the rules, regulation, norms, discipline, and the decorum of the parliament. Let them not make the people ashamed of whom they choose to be their representative. धिक्कार गोविंद कुमार, तेरी सरकार पे धिक्कार। विपक्ष हमारी झूठी है, विपक्ष हमारी झूठी। प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस। सभा की गरिमा बनाए रखें। प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस। गोविंद कुमार की सरकार। प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस। सभा की गरिमा बनाए रखें। श्री अर्चित सुमन जी, have you given notice of it earlier? Yes, Honorable Speaker, I have already given the notice of it at 10 a.m. today. It will be examined when it comes to me. Do not spring a surprise on me like this. I shall consider it and let you know. Now papers to be laid. Honorable Minister of Health and Social Welfare, Shri Bhavani, please. Honorable Speaker, Madam, I beg to lay on the table the copy of the papers of reports related to the following: the Pharmacy Bill of 2023, which includes the salient features: A. Regulatory modernization, B. Revised qualifications,
and C. Strengthening oversights. Thank you. Thank you. Now, Honorable Minister of Electronics and Information Technology, Shri Anubhav, please. Honorable Speaker, Madam, with your permission, I would like to lay down the followings. A. Report related to data collection rules. B. List of obligations of data fiduciaries. And C. Along with the audited accounts of data transfers. Thank you. Thank you. Now, Secretary General to report the message from Upper Chamber of the Parliament. Ma'am, I have to report the following message as received from the Secretary of Upper Chamber of Parliament. Youth Employment and Skill Development Bill 2024 is seeking to increase the annual budget for skill development 20% with specific allocations for rural areas to address the regional disparities is now passed from the Upper Chamber of Parliament in the session commenced in 18th July 2024 and is now ready to be sent for President's approval. Secretary to lay on the table a copy of the bill as passed by the Upper Chamber. I lay on the House of the table the copy of the Bill of Youth Employment. Thank you. Honorable members, I have to make an announcement. On my behalf and behalf of the House, I have great pleasure in extending our warm welcome to Shri Narayan Kaji Shresht, the Foreign Minister of Nepal, and Shri Gyamar Tutu, his Secretary. It is a very high-powered delegation. The delegation arrived on Sunday, and they are now seated in the special box. We wish them a happy and fruitful stay in our country. Now it is time for legislative bill to be introduced, so I request the Honorable Minister of Law to please introduce the bill. Madam Speaker, I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the press and registration of Waqf Bill 2024. The Waqf Amendment Bill 2024 introduces strict Waqf formation criteria and protects heirs' inheritance rights, especially for women. The bill revises Waqf Council and boards to include non-Muslims and diverse Muslims representations. Tribunal structures are streamlined for dispute resolution and central government is powered with rule-making powers. Thank you. Now the question is that leave be granted to introduce a bill further to amend the Press and Registration Waqf Amendment Bill 2024. Those who are in favor will please say aye. Aye. Those who are against it will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Leave is granted. Madam Speaker, I introduce the bill. The bill will be considered in the next session of the Parliament. Now the House will take up consideration of the Climate Change Renewable Energy Promotion Act. Ministry of New and Renewable Energy, please. Honorable Speaker and esteemed member, I stand before this assembly to present the Climate Change and Renewable Energy Promotion Bill 2024. As climate change increasingly threatens our environment, economy and future, this bill proposes concrete steps toward mitigating the effect of global warming by fostering renewable energy and curbing carbon emission. The key provisions of this bill are: renewable energy target. By 2030, we will augment the share of renewable energy to 50% of our national energy portfolio. Second, carbon emission reduction. A mandated 30% reduction in carbon emission from critical industries by 2030 with strict penalties for non-compliance and incentives for early adopters of clean technology. At last, I would like to speak about green energy incentives. Generous subsidies and tax exemption for individuals and business investing in renewable infrastructure such as rooftop solar panel, wind turbines and electric vehicle system. Thank you. Thank you. Shri Archit Sumanji, would you like to share your views, please? ऑनरेबल मैडम स्पीकर, जलवायु पर ध्यान देने का इरादा तो इनका अच्छा है, लेकिन इस तीव्र बदलाव का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी सोचिए जरा। फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी पर जाने के लिए आधुनिक बदलाव की आवश्यकता है, पर जमीनी स्तर पर अभी कुछ भी उपलब्ध नहीं है।
यह विधेयक कोयला, तेल और प्राकृतिक गैसों पर निर्भर इंडस्ट्री का क्षति पहुंचा सकता है। उन क्षेत्रों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। श्रमिकों से को फिर से प्रशिक्षित करने के लिए इन सरकार के पास कोई योजना नहीं है। उस समय सरकार के पास इसके लिए कोई योजना नहीं होगी। रिन्यूएबल एनर्जी पर बात अच्छी तो है, पर क्या सचमुच इसके लिए अभी हम तैयार हैं? इसीलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं। धन्यवाद। श्री प्रभु प्रीतम राहुल जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? Thank you again, Madam Speaker. It should also be highlighted that the bill aims to reduce environmental damage caused by traditional energy resources. Burning of fossil fuels leads to greenhouse gas emissions, which causes global warming, rising sea levels, and extreme weather. Switching to cleaner energy will lower health problems like respiratory and heart diseases caused by pollution. It also promotes sustainable use of natural resources, protecting generations for future generations. The bill provides financial incentives for companies to adopt green practice and focus on improving renewable energy systems. Therefore, I support the bill. थैंक यू। श्री माधव बाग जी, अपने विचार व्यक्त कीजिए। Madam Speaker, we also raise concern about the feasibility, reliability of renewable energy sources, arguing that they are not yet mature enough to handle India's growing energy demands. Additionally, the large-scale land use required for solar farms and wind projects leads to deforestation and displacement of local communities. These factors highlight the need for a more major approach, balancing renewable energy promotion with economic stability, and ensuring that the bill does not have any unintended negative consequences. Therefore, Madam Speaker, I am against the bill. Thank you. थैंक यू। श्री सौमिक बारिक जी, आप भी अपना विचार व्यक्त कीजिए। The Climate Change and Renewable Energy Promotion Bill 2024 addresses the urgent climate crisis by promoting renewable energy sources like solar and wind, reducing reliance on fossil fuels and cutting greenhouse gas emissions. It offers economic benefits through green job creation, technological innovation, and energy security. As climate change intensifies, this bill is crucial for India to meet global climate commitments and protect future generations. Therefore, I support the bill. Thank you. It will be considered in the next session of the Parliament. I request the Minister of New and Renewable Energy to speak, please. This bill seeks to expedite India's transition to sustainable energy, diminishing our dependency on fossil fuel and aligning with our pivotal commitment of achieving net zero emission by 2070. It will significantly reduce greenhouse gas emission, generate green employment opportunities, and stimulate technological innovation. While some critics voice concerns over potential economic disruption, job displacement in conventional sector, and elevated energy cost, this legislation strikes a delicate balance between economic stability and environmental sustainability, ensuring a resilient and greener future for India. With this bill, we are not just addressing climate change, we are building a more sustainable, prosperous, and secure future for our nation. Thank you. Thank you. Now the question is that Climate Change and Renewable Energy Promotion Bill for matters connected therewith be taken into consideration. Those who are in favor of the motion, please say aye. Aye. Those who are against it will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Motion is adopted. Now clause by clause consideration, the question is that clause 211 stand part of the bill. Those who are in favor of the motion, please say aye. Aye. Those who are against it, please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Motion is adopted. Clause 211 stands part of the bill. Now the question is that clause 1, the enacting formula and title stand part of the bill. Those who are in favor of the motion will please say aye. Aye. Those who are against it, please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Motion is adopted. Minister for New and Renewable Energy, please. I move the bill be passed. Motion moved that the bill is passed. Those who are in favor, please say aye. Aye. Those who are against it, please say no. No.
I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Motion is adopted. Today's session was very fruitful. The session is adjourned till the next session. Thank you. तालियां रुकनी नहीं चाहिए इतने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के बाद. So once again put your hands together. Wow, what a chaotic but spectacular and fruitful session it was. It truly gave us a glimpse into an actual parliamentary session, which is a thing that everyone should know. Right, Sakshi? Absolutely. I'm lost for words to explain how brilliantly they captivated the audience with their thrilling demonstration. Now, I would like to request one of the coordinators, Dr. Ambesh Kumar Pandey sir, for vote of thanks. सभी को शुभ संध्या। क्या बताएं आपसे बड़ी लंबी कहानी है, क्या बताएं आपसे बड़ी लंबी कहानी है, हमारी पहचान इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं ज़्यादा समय न लेते हुए धन्यवाद ज्ञापन पर आना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा हमारे बीच उपस्थित आदरणीय प्रिंसिपल सर का, प्रोफेसर पीसी अग्रवाल सर का, कि उन्होंने हम लोगों को और यहाँ पर सारे बैठे हुए स्टूडेंट्स को एक मौका दिया कि हम देश की संसद को, देश का संविधान कैसे चलता है, उन चीज़ों को समझ पाएँ और हम उन चीज़ों को और भी जो हमारे बीच साथी हैं दिखा पाएंगी कैसे चीज़ें संचालित होती हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डीन ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोफेसर रीतांजलि दास मैम का, जो कि हमारे बीच अभी तक थी। मैम ने भी हमें जितना ज़रूरत थी सपोर्ट किया। मैम थैंक यू सो मच। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा हमारे बीच उपस्थित ओवरऑल कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा सर का। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी उपस्थिति हमारे लिए मार्गदर्शन का काम हमेशा करती है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज के प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कलिंगा केतकी सर का। सर थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर उपस्थित जितने भी सीनियर्स हैं, कलीग्स हैं, सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं आईसीटी स्टूडियो, CNW और जितने स्टाफ हैं सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और सबसे ज़्यादा जो धन्यवाद के पात्र हमारे बीच में हैं वो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो चीज़ें स्टेज पर हमें दिखती है उसके पीछे, स्टेज के पीछे कुछ लोग होते हैं जिनकी बहुत मेहनत होती है। तो मैं कुछ हमारे विद्यार्थी जिन्होंने बैक स्टेज बहुत मेहनत की, मैं उनका नाम लेकर के उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनका नाम है इफ्रा अनवर, जयवर्धन, अनिल, कशिश फातिमा, अंशिका चौधरी, स्नेहा चौधरी, आद्यशा दास, हृदय मोहिनी। इन सब का बहुत विशेष रूप से धन्यवाद। और आप लोगों का, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, प्यारे विद्यार्थी, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे आखिरी में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे देश के संविधान निर्माताओं का, जिन्होंने हमें इस तरह से जो है हमारे संविधान का निर्माण किया और हमें भारत जैसे देश में रहने के लिए एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट और बहुत ही हमारे जितने भी अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको हमें प्रदान किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।